Please feel free to share your experiences. आपके हिसाब से कैसे स्टार्ट करना चाहिए? Hello. हाँ बोल. Sir, I think we should start with some background about the GST. Like we are going to start in Samsung GST. So why there is a necessity of GST, and along with that, even we have थोड़ा माइक्रो से already seen in तो ज़्यादा direct. हाँ. हम लोग डायरेक्ट टैक्स में भी देखा हुआ है कि बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी जो है वो समझ में नहीं आती है. सो अगर हम उसके साथ में थोड़ा टैक्स का वेबसाइट जो इनकम टैक्स वेबसाइट है उसको भी एक सेकंड. ठीक है. वो अदर फैकल्टी ईला एंड रश्मि. सर हाँ गुड इवनिंग सर. सर आई कंप्लीटली एग्री विद सुभाष सर. मतलब व्हाट वी विल डू इज सबसे पहले we will tell them the difference. In semester 5 you have studied direct tax, now it is indirect, so what is the difference between them? और पहले impact था, service tax था, so now we have GST, so we will prepare a background and then we will start with the GST. Why GST is important and पहले जो VAT था, service tax था, उसको क्यों निकाला और क्यों GST इंट्रोड्यूस किया, so we will give them this introduction. Yes, sir, exactly same. First of all, we should explain that what is tax basically, and then classify it into direct and indirect tax. Direct tax they have already studied, so now we'll come to indirect tax. Then indirect tax also, what kind of taxes were applicable earlier and now why GST was introduced and what is GST, what is its importance. And then we should come, because in last time also I think they've studied the introduction part of GST already they've done. So they must be knowing about the basics of the GST. So we then we should continue with our topic, I guess. Okay. See, dear faculty, still you are in theoretically going as per the as explanation is concerned, and now you are mature enough. You are teaching since several years, and you'll find what is your approach and what I expect from you all to do. What being a teacher I will do, there will be of course when it is TY become 80, 90 students, and when we will ask them, get me any kind of receipt in your pocket or in your residence, and see in that receipt, are you finding CGST, SGST word? Are you finding UTGST word, or anywhere you are finding GST word? So don't you think it will be more interesting for them? I will give them 5 minutes that time. So what has happened, then students collect some kind of receipt, and many a times they come up with the payment what they have done. And second question I ask amongst them, and I ask them, everyone, please show whatever the receipt you have. Many a times we found they have paid the GST, but there was no GST number. GSTN is missing. Most of the time it is happening, particularly if you'll go to, certain restaurant and all, particularly when it is on highway or some. Even I have experience. There are many receipts, many payment what they have done without GSTN number. From there I start speaking. And then I state them that, boss, it is so very important for your life that you are paying to them, but you don't understand why you are paying to them. And if there is no GST number, they do not have right to charge GST from you all. How big live example it would have been. An entire family member, suppose he is asking from his parents or someone at
elder brother or sister, तो घर में सबको लगता है कि there is teaching going on. They will also appreciate our efforts. अब बताओ, आपने जो बोला था और मैंने जो बोला उसमें कितना फर्क है? Yes, sir. True. सर गुड इवनिंग सर. हाँ सादिक सर, आप भी Good evening, जीएसटी sir. पढ़ा रहे हैं, आप लेट हो, पेरेंट्स को नहीं बुलाना पड़ेगा. नहीं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ. मेरे को लगा हम सबको अटेंड करना है. कैसे मैं आया? ठीक है, बाहर था फैमिली के बहुत साथ फंक्शन 30 बहुत प्लस. अच्छा चीज मिस कर दिया. एंड इफ यू हाँ, कैन बी ऑन वीडियो मोड. देखो मुझे थोड़ा ये लगा कि आप चाहते हो बच्चे वीडियो मोड पे रहें, लेकिन आप लोग वीडियो मोड पे नहीं रहते. दैट इज नॉट ओके. सादिक सर, अभी जस्ट बात हो रही थी जीएसटी हाँ सर. टीच करने की. आपको मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको ऑडिटिंग में हेल्प आएगा, आपको ऑडिटिंग का मेंटर अच्छा. बनाएगा. ट्रेन यू हाउ टू टीच ओके. एंड द ट्रेनर. अच्छा. मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा इन बंदों को कि आप जब भी क्लास में जाओगे तो आप कैसे लेक्चर को स्टार्ट करोगे. तो जो इन्होंने आज तक पढ़ा था इन डिफरेंट टेक्स्ट बुक और समथिंग, तो वैसा ही इन्होंने अपना चालू किया. सर वी शुड टेल देम कब सर्विस टैक्स था, उसका क्या डिसएडवांटेज था. अरे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. मेक देम. आई थिंक रश्मि विल अंडरस्टैंड बिकॉज ही हैज डन बीएड. सादिक also will understand, he has also done BEd. यस. कि टीचर बड़ा सर. को जब तक तुम एंटरटेनिंग नहीं बनाओगे, जब तक तुम बराबर. इन्वॉल्विंग नहीं बनाओगे, बच्चे नहीं रहेंगे. कुछ होगा This नहीं. is the first Okay. time I have introduced that train the trainer. Of course you are the trainer, but हमें अपॉर्चुनिटी मिली है. I should train them. मैंने 22 साल जो सीखा है, अगर मैं आपके थ्रू चैनलाइज करूंगा, आई थिंक इट विल बी मोर फ्रूटफुल. देयर विल बी 5 निशिकांत सर इन नेक्स्ट एकेडमिक ईयर. Agreed. निशिकांत सर को जो मिलना है वो मिलेगा ही. आई डोंट अफ्रेड कि भाई मेरा टिप्स ये लोग चोरी कर लेंगे. देयर आर अदर क्लास ऑफ पीपल ऑल्सो, वो नहीं ट्रेन करते, दे डोंट डिस्क्लोज टू द न्यू कमर्स. बट मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा विजन बहुत अलग है. अलग है सर. अब बताओ आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं, अगर ऐसे हम लोग अप्रोच करेंगे तो हमने क्या किया सादिक सर, इनको बताया कि हम बच्चों से कोई भी रिसीट मांगेंगे जिसमें उन्होंने पेमेंट करा है, और फिर बोलेंगे ढूंढो अच्छा इसमें जीएसटी वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है. डेफिनेटली मिलेगा. वो मिल जाएगा. नहीं मिलेगा. फिर हम उनसे पूछेंगे आपने जीएसटी भरा था, बोलेगा हाँ सर भरा था. ठीक है. बहुत सारे ऐसे मेरे बिल दिखाते हैं बच्चे लोग जिन्होंने जीएसटी नीचे लिखा है लेकिन ऊपर जीएसटीएन नंबर नहीं है. फिर उनको हम रियलाइज करवाते हैं, बेटा देखो अगर जीएसटीएन नंबर नहीं है मतलब वो रजिस्टर्ड है ही नहीं टैक्स चार्ज करने के लिए, तो उसने आपसे जीएसटी कैसे ले लिया और आपने कैसे दे दिया. मैल प्रैक्टिस. तो आप तो मैल प्रैक्टिस. पढ़े लिखे मूर्ख हो. तो उनको रियलाइज होता है, अरे यार ये तो पढ़ाई के बियॉन्ड है. जल्दी अगर हम भरने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, सीखने जाएंगे, तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हमको तो इसका नॉलेज होना चाहिए. परफेक्ट सर. अग्रीड सर. फिर मैं वो उनको जरूरी ये सर. बोलता हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, फिर मैं बोलूंगा उनसे पूछता हूँ जीएसटी किस पे एप्लीकेबल होता है बेटा, तो बोलेगा सर सब पे एप्लीकेबल होगा. तो बोलेगा इसका नॉलेज, इवन दो डॉक्टर उसको भी जरूरत है, इवन दो साइंटिस्ट उसको भी जरूरत है, इवन दो you know anybody in India required the knowledge of GST. Yes. It's important. This training ट्रेंड आ गया. will help you to train them. उनको आप ये चीज सिखा सकते हैं. तो ये सब्जेक्ट आपको सिर्फ पास होने के लिए नहीं सीखना है, आपको आपके जिंदगी में, आपको आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए सीखना है. ग्रेट सर. अब क्या होगा ना, धीरे धीरे बच्चों में सीरियसनेस बढ़ने लगेगा. इंटरेस्ट आएगा. अरे ये तो ईवीएस एफटी नहीं है बेटा, ये ऐसा कुछ चीज है जो अपने जिंदगी में बहुत मायने रखता है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? मायने रखता है. ठीक है. इसके बाद इमीडिएटली मैं एक फीडबैक भेजूंगा आपको. हाउ डू यू
थैंक यू सुभाष. हाउ डू यू लाइक? और ऐसा सिर्फ मस्का मारने के लिए नहीं. आई एम हियर एज एन इसी आंसर. नो वीपी एट ऑल. यहाँ पे ईपी वीपी का कोई सवाल नहीं है. ठीक है. यू ऑल आर कलीग एंड वी शुड हेल्प ईच अदर. एक दूसरे को ट्रेन करना जरूरी है. ठीक है. अच्छा लग रहा है आप लोगों को? मुझे नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपका 31st बिगाड़ रहा हूँ. बट मेरे हिसाब से इससे अच्छा 31st नहीं हो सकता जिसमें अपने को कुछ अच्छा लड़ने के लिए. और मेरी मजबूरी है क्योंकि परसों से मैं आपको लड़ने के लिए भेज रहा हूँ. अगर मैं आपके हाथ में सारे वेपन्स नहीं दूं तो आप कैसे लड़ाई करोगे? तो बीइंग द मेंटोर टीचर ऑफ दिस सब्जेक्ट, मुझे लगता है कि मैं अपने सारे वॉरियर को ऐसे भेजूं कि वो जाके जंग जीत के आए. मेकिंग इट सेंस? Yes. Okay, thank you. Yes, sir. Yes. Once they realize that now it has to have, then I will start. बेटा तुम लोगों ने टैक्स तो लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था. अब मुझे बताओ कि ये सेमेस्टर में टैक्स में डिफरेंस क्यों है? मैं जीएसटी क्यों पढ़ाना चाहता हूँ? क्या जरूरत है? ये तो उनके लेवल का इंपॉर्टेंस बताया. अब मैं उसको कंट्री के लेवल का इंपॉर्टेंस बताऊंगा. ठीक है. कंट्री के लेवल में इंपॉर्टेंस ये है कि इंडिया, अब बताओ इनडायरेक्ट टैक्स के क्या क्या एडवांटेज है? व्हाई वी शुड हैव इनडायरेक्ट टैक्स? आप लोग बताओ. थोड़ा बहुत आप लोग भी बोलो, मुझे अच्छा लगेगा. So because उसमें क्या होता है, so we don't know ना how it is being paid because it is indirectly paid. Like direct tax we come to know, but indirect tax we are paying it. We are not aware of that. So that's the reason we need to know. One of the reasons. अभी तो सब देख The देख के government also needs revenue. So that it's a major source of revenue for government also to run the country. ये सब टेक्स्ट बुक में जो जो पढ़ा है वो बनते जा रहे हैं. ठीक है. और And so, even as every single thing which we buy, which we use, every person of the country is paying GST. Direct tax, everybody is not paying. Hardly 2 or 3% population of the country is paying direct tax, but indirect tax is going from everybody's pocket. So, am I right? I'm not sure. तो अभी मुझे कंट्री के प्रोस्पेक्ट में बताना पड़ेगा. बेटा इंडियन पॉपुलेशन हैज हेट्रोजेनिटी इन इट. देयर आर पीपल हु डू नॉट हैव इनकम and there are people who has plenty of income. So that's a disadvantage if everybody is paying. It's even the person having low income is paying the same amount of GST मैं which बताता the हूँ person having high income is paying. मैडम मेरे को खत्म तो करने दो. ऐसा हेट्रोजेनिटी Sorry, ऑफ sir. इनकम है ना इंडिया में. तुमको रियलाइज होगा, यस सर ये तो है. बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे भिखारी भी है, और उनके सामने अनिल अंबानी भी है. ठीक है. तो ऐसी कंट्री में मुझे डबल टैक्स स्ट्रक्चर रखना बहुत जरूरी है. तो जैसे मुझे डायरेक्ट टैक्स की जरूरत है वैसे गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स की भी जरूरत है. क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स आपने पढ़ा, जिसको 2.5 लाख है, 2.5 लाख से ऊपर है वही पैसा भरेगा. तो अब बाकी लोग तो कुछ भरेगा नहीं, तो मोदी जी क्या करेंगे? खुद भीख मांगेंगे. So in such cases, when you have such kind of population, and almost all country across the globe have this kind of population. So most of the time, every country has this kind of tax structure. One tax, and आप लोग सबको पता रहेगा that India has 5% of population, which has 95% of Indian wealth, and remaining 95% of population, Agreed, sir. which has remaining 5% of Indian wealth. So that 5%. 5% includes Rahul ji, Sonia ji, Amit Shah ji, Sharad Pawar ji, Ambani ji, Adani ji, Tata ji,
बिरला जी, टाटा, 5% पॉपुलेशन, 130 करोड़ का अगर 5% निकाल देंगे तो बहुत हो जाता है। इसमें बहुत सारे जी आ जाएंगे, उनके पास ही एक्चुअल वेल्थ है। agreed, sir. तो वही लोग सिर्फ टैक्स भर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स, और जितना वो इनकम कर रहे हैं उतने पे 30% लग रहा है। व्हाट अबाउट रिमेनिंग? क्या वही 5% इंडिया के सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं? तो बोलेगा नहीं सर, अंबानी सर को तो हमने अपने बाजू में कभी रोड पे चलते हुए देखा ही नहीं, वो तो एलिपैड टू एलिपैड जाते हैं। કેમ આશે છે? હું સાચું કહું છું ભાઈ, तो एलिपैड टू एलिपैड जाते हैं, तो उनको बुरा नहीं लगेगा। इसलिए दूसरा एक टैक्स रिजीम बनाया गया है विच विल बी इक्वल फॉर एवरीवन। तो यहाँ जो टैक्स लगेगा, अंबानी भी उतना ही टैक्स भरेगा जो एक भिखारी भरेगा। सपोज दोनों 1 किलो नमक खरीदने जा रहा है, तो 1 kg of salt will have equal amount of GST, say for example 2 rupees for Ambani also, and for that poor beggar also. Person also. This is called equality. This is required in Indian system, and that is why we have indirect tax. It has many advantages. Sadiq sir has rightly stated, because you never realize when you pay, right? इसलिए you, because when you take the MRP of दिखाने का कोई प्रोडक्ट, बोलने का ये जो MRP लिखा हुआ है इसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है। तो तुमने पूछा क्या, इसमें 2.5 लाख का लिमिट आया क्या? इसलिए सब पे करते हैं, और सुबह से रात तक जो हम लोग यूज करते हैं सब में अपने को टैक्स भरना पड़ता है। ऑफ कोर्स इट इज अगेन रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। डिफेंस में खर्चा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सब कंट्री हमारे लिए ही खर्चा करती है। ये रियलाइज कराना बच्चों को बहुत जरूरी है। पहला तो ओथ लेने का कि तुम टैक्स भरो, बट उस लेवल पे आपको लेके जाना पड़ेगा ताकि वो टैक्स चोरी ना करें। इसके साथ हम अपने को उनको वैल्यू एजुकेशन सिखाना बहुत जरूरी है। कोई भी सब्जेक्ट में जैसे कुछ टॉपिक आए ना, थोड़ा उनको सोशल वैल्यूज, एथिक्स यू शुड टीच देम। Being a teacher, it is our moral and ethical duty. Okay, so then अब क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे टेम्पो बने जा रहा है कि हाँ भाई अभी तो एकदम सब्जेक्ट पे आते जा रहे हैं, एंड देन वी विल कम टू टैक्सेशन। फिर हम टैक्सेशन में हम नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन टू यू ऑल। ये सब मैं आपको दे दूंगा, आपको बना बनाया मिलेगा, तो यू नीड नॉट हैव टू वरी। इसमें सब कुछ है, आपका सिलेबस क्या है, जीएसटी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई डोंट टीच फ्रॉम योर, आई डायरेक्टली गो टू दिस एग्जाम एंड मैं बोलता हूँ ओके, आप लोगों को पता है पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसमें एक्चुअली टैक्स इम्पोज किया जाता था मैन्युफैक्चरर पे। एंड इनडायरेक्ट टैक्स का ये फीचर है, दे कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स, यस और नो? Okay, they can shift the burden. If it is imposed to manufacturer, they will pass on to wholesaler, they will pass on to retailer, finally pass on to consumer, and ultimately consumer who is going to pay the tax. सब बच्चों को पता है, वो 11वीं से यही झक मार रहे, यही सीख रहे। ओके, सो इन दैट केस अब ना उनको गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्ट से बताएंगे बेटा व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट वर हैपनिंग अर्लियर। अभी ये मैन्युफैक्चरर के पास गवर्नमेंट बोलता था पैसा लेने के लिए, तो मैन्युफैक्चरर क्या बोलता था, साहब होलसेलर ने पैसा नहीं दिया है, टैक्स भेज के हमको पैसा नहीं भेजा है, हमको मिलेगा तब हम आपको देंगे ना।
होलसेलर के पास गया बेचारा तो बोलता है रिटेलर ने नहीं दिया है, रिटेलर ने के पास गया बोलता है साहब स्टॉक तो पड़ा है, कंज्यूमर से बेचूंगा तब तो पैसा आएगा, तब तो आपको दूंगा। दैट वाज द फ्लॉज इन अर्लियर टैक्स regime, और ये सबको पता है। दिस मच कॉमर्स नॉलेज स्टूडेंट नोज। तो इसको तोड़ने के लिए बेटा वी हैव, our government has introduced GST which is applicable across the globe. Abhi now I will tell them how GST is so important in all the countries. Okay, GST is applicable in all countries across the globe. मैं बोलूंगा गूगल करके देख GST is applicable in USA or not, वो करता है फटाक से पता, अरे हाँ वहां भी एप्लीकेबल है। तो अब उसको लगता है यार ये तो ग्लोबल चीज सिखा रहे हैं सर। I have visited so many countries and every country I have paid GST. When it was not introduced in India. So this knowledge will also help you. Suppose you are going abroad and you are paying tax over there. Then I will take the importance of GST. So what was happening earlier, this was the system. Now, due to set off input tax credit, but ज़्यादा नहीं सिखाने का ITC, because ITC in the act it is there in section 16, 17, 18, 19, 20 and 21. अभी मैं तेरे को सारे sections बता सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने read करा है, because मेरे ज़हन में सारे section fit है. So whenever you teach the subject of taxation, sections are very important. You should have the thorough command on all the sections. Then only students will give you importance. Okay, like section 1 introductory, section 2 definition, 3, 4, 5, 6 is regarding GSTN, how GSTN could be framed, who will be the member, how all the finance minister of different states, their working, how it will be work, how there will be coordination, etc. Section 7 supply, section 8 mixed and composite supply, section 9 levy of tax. So you have to have the knowledge of all sections. Section 10 composition scheme, section 11 exemption, section 12 time of supply for goods, section 13 time of supply of service, section 14 change in rate of tax, section 15 value of supply, section 16 to 21 just now I told you ITC, section 22 to 30 is talking about registration. So this much is there in your syllabus. So what is happening beta now? If suppose manufacturer has paid 10% tax on 200 ka goods and sold it for 220 rupees to the wholesaler, and again the wholesaler is liable, made them addition, and wholesaler is selling that goods at 250 rupees. Now when they will pay to the government tax, he will deduct 20 rupees as ITC and he is going to pay to the government only 5 rupees. Again, it will, when sold by the retailer to consumer, when retailer is going to make the payment of 30 rupees on the value of 300 rupees. So he is going to get the input tax credit of 20 paid by manufacturer, 5 paid by wholesaler, and only 5 rupees will be his liability. Now what will happen in this case? Now all has to pay, all has to keep the record and give the input to others. Then only they will get the benefit. If you are not doing, if you are unregistered dealer, I will not take the goods from you. Why? Otherwise, I need to pay 30 rupees. नहीं तो मेरा liability is only 5 rupees. So एक तीर में मैंने सारे निशाने कर लिए. Understood?
So now बच्चा लोग बताओ, it is win-win for everyone or not? For manufacturer also, wholesaler also, retailer also, and for every movement government is collecting the tax. They are getting the payment. अभी वो किस्सा नहीं कह सकता कि साहब होलसेलर रिटेलर को पूछो, रिटेलर मैन्युफैक्चरर, ऐसा नहीं कर सकता वो. And they are also happy. Why? Because they are liable only for their portion of tax, not others. गवर्नमेंट ने इस पे और एक स्कीम दिया है बच्चा लोग. अगर आप लोग चालू करोगे आपके बिजनेस को, whatever the ITC, बट मैं आप लोग को थोड़ा हिंदी यूज करके बता रहा हूँ. बट आप जब भी पढ़ाएंगे, डोंट यूज हिंदी इन बिटवीन. इनिशियली ट्राई टू बी इन इंग्लिश, नहीं तो और नए नए फतवे आ जाएंगे आपके लिए. ठीक है? So I'm just making you aware. आप लोग को अच्छा लग रहा है, इसलिए आई एम यूजिंग हिंदी इंग्लिश बोथ. Yes, sir. Enjoying. So where I was, क्या So the मैं tax part आपने बता रहे थे ना, 25 का टैक्स का बता रहे थे ना आप सर. होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, ITC वाला क्रेडिट अरेंज. only their part. So they are very much happy because they are paying their portion of tax to the government. Okay? तो यहाँ से अभी अगेन और गियर अप हो रहा है चीजें, और बच्चा और इंटरेस्ट लिए जा रहा है. क्यों? क्योंकि थियरी से मैं प्रैक्टिकल पे आ गया. एंड डोंट टीच एंटायर थियरी. इफ इट इज 40 minutes lecture, try to have the mixture of both. Now you have explained it to them. Now next time try to have certain examples. Okay, whereby they should compute the tax and they will give it to you. So 100% अगर theory जाते हो ना, बच्चे neglect करना चालू कर देंगे. You have to have the combination. That is also very important. Okay? I have also made them very clear which are the lengthy definition, which are the short definition. तो बच्चे स्टार्टिंग से मेकअप कर लेगा माइंड. मतलब मैंने बहुत अच्छा पीपीटी बना दिया आप लोगों को. जो टैक्स पढ़ा रहा है वो तो उनको पूछ करने की जरूरत नहीं है. देखो याद है मैंने बोला था सेक्शन 7 क्या था? सप्लाई. सेक्शन 8 टाइप ऑफ सप्लाई. ठीक है. सेक्शन 9 लेवी एंड कलेक्शन. सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम. अब मैंने क्या यहाँ पे किया है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न. इफ विल गो टू द टेक्स्ट बुक, आई विल गिव यू द बुक ऑल्सो. थिंग्स आर गिवन. अब ये सब तुम पढ़ना, ये सब तुम्हारे, थोड़ा तुम भी तो मेहनत करो. एंड दिस बुक आर अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट. आई विल गिव यू दैट लिंक ऑल्सो. सारे इलस्ट्रेशन दिए, थोड़े थोड़े इलस्ट्रेशन. बीच बीच में उनको देखो, थियरी एंड प्रैक्टिकल का मिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज स्टूडेंट विल डिस्कनेक्ट. ओके, तो ये सारा देखो कितना अच्छी तरह से एग्जाम्पल आई हैव पुट इट फॉर योर रेफरेंस. ओके, तो तुम्हारा तो कुछ करना ही नहीं टैक्स वालों के लिए, खाली मेरे को आके मिठाई खिलाओ. सर मेरा चिकन पार्टी. अच्छा सर, वेरी नाइस. मैं इसकी ज्वाइन कर दिया एक्चुअली. मैं आपसे these things नो इन डिटेल दिया उन्होंने. सेक्शन 7, 8 ये देखो ऐसा डिस्क्रिप्शन में दिया है. अपने बच्चे को डिस्क्रिप्शन रीड करने को नहीं जमता है. लाइक दिस इज सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ऐसा उनका दिमाग नहीं चलता है. यू हैव टू मेक देम कॉलमनर फॉर्म. तो मैंने क्या किया, ये सब तो ठीक है, थियरी पार्ट है. मैंने जब भी ये सेक्शन कंपोजिशन स्कीम में आया, so I made this table. This is section 9 subsection 1.
सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, उसके जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है उतना ही सिखाया बच्चों को। अभी फुल स्क्रीन करोगे तो दिखेगा ये पूरा। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो थियरी उनको ऐसे पढ़ने में बहुत डिफिकल्टीज होती है, सॉरी, है ना? तो आप उनको एनालिसिस करके दे दो, उनके टाइप में उनको सिखाओगे ना। जैसे मैं, टू टीच यू गाइज आई एम बिकमिंग लाइक यू। Similarly, when we need to teach to the student, we need to be like them. Agreed, sir. Getting me? Then Yes, sir. you will have, then you will be a star teacher. अभी देखो सेक्शन 9 के कैसे दिए हुए, डिस्क्रिप्शन दिए हुए। they don't like to study like this. ये बुक में दिया है, मैंने मेहनत करके क्या किया उसको Precise किया. Up to the point, sir. ठीक है। ये मेरा मेहनत नहीं है, मेरे बच्चों ने ऐसा लिखा है। मेरा राइटिंग देखोगे ना आप लोग रो दोगे। आई एम वेरी बैड इन राइटिंग। नहीं सर आपको हैंडराइटिंग अच्छा है। नहीं, आप ये बहुत रॉन्ग तारीफ कर रहे हैं मेरी। नहीं सर हैंडराइटिंग है आपका अच्छा। देखो मेरी राइटिंग, जो 2-3 नहीं अच्छे थे, तो अभी आप लोगों की ड्यूटी है कि मुझे ये पेज लिख के देंगे। दिस इज सेक्शन 16, बहुत टाइम है अभी आने को। 16, 17, 18 मतलब मैंने खुद से लिखा है, इसमें थोड़ा इम्प्रोवाइज किया हूँ मैं। 17 में उससे ज्यादा इम्प्रोवाइज किया, और 16 में तो मतलब मेरे को ही समझेगा और किसी के बाप की मजा नहीं है इसको समझने का, कितना मैं एनलार्ज कर दूं तो। ठीक है ना बेटा लोग? तो देखो मैंने आपको क्या करा, सब सेक्शन वाइज ही जाने का। याद है 22 to 30 मैंने बोला था रजिस्ट्रेशन। 22 में कैसे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, एक लेक्चर में रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। अब बोलोगे सर 23 क्यों नहीं लिखा आपने? पूछो पूछो। 23 क्यों नहीं लिखा आपने? देखो सादिक सर मेरे एकदम खास दोस्त, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दिस टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट रजिस्ट्रेशन and 23rd is talking about how do not go for registration. Okay. How any taxable person can avoid registration. Avoid registration. Section 20. That is why I have excluded that section from here. Because in our syllabus, they are not asked us to teach how not to go for registration. Rather, Registration. they are asking us to teach how to go for registration. Registration. What are the requirements? What are the compulsory registration? If you are NRI, how you will do the registration? How you can do the revocation of registration? How you can do the cancellation of registration? Every detail is given here. But हर एक सेक्शन ऐसा नहीं है बच्चा। अदर सेक्शन में एक एक पेज पे एक एक सेक्शन है एंड उसके सब सेक्शन है ना? Yes. अब ये सेक्शन 15 है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, 4, 5, 6 ऐसा। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा आपको ये सब हम लोग कौन सा फॉलो कर रहे हैं? ये सारा हम लोग CST एक्ट, सेंट्रल CGST एक्ट 2017 फॉलो कर रहे हैं। What we are following? CGST Act 2017. एक चीज ऐसा है हमारे सिलेबस में which is given as a nomenclature for place of supply. उसके लिए हम लोग को IGST फॉलो करना पड़ता है। क्या फॉलो करना पड़ता है? IGST, इंटीग्रेटेड GST, बिकॉज उसमें दोनों प्लेस हो सकता है ना, उसके डिफरेंट सेक्शंस है। ठीक है, तो मैंने बुक में वैसा ही सेक्शन दिया है, वैसे ही आपको दिया है सिखाने के लिए। तो वैसे वैसे टॉपिक पढ़ाओगे ना तो लिंक बैठता जाएगा।
पहला इधर 10 तक खत्म किया है, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई सिखा दिया है। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का आईजीएसटी का सारा सेक्शन खत्म कर देने का, और फिर कंटिन्यूटी पढ़ाने का सीजीएसटी एक्ट, ऑल द सेक्शन। इज दिस क्लियर? Okay, sir. देखते हो टाइम ऑफ सप्लाई सब सेक्शन 12(1), 12(2) इतना अच्छा किसी भी टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ। I can bet, I can challenge. Of course, it has efforts of 3. I mean, these are our patent. इसको यूज करने के लिए आप लोग को रॉयल्टी भरना चाहिए, जाने तो नहीं भरेंगे तो अपने ही बच्चे। So this all we got it from different material of ICAI, and मैं नहीं आपको बोलूंगा इतना टाइम वेस्ट करो, फिर भी मैं भेज दूंगा ये सारे मटेरियल, आप रेफर करो। ICWAI, बट मैंने जो मेहनत करी है, मैं नहीं चाहूंगा कि आप वापस उसी मेहनत को दोबारा करते रहो। बहुत मेहनत से मैंने ये नोट्स बनाए। So लग ही रहा है, बहुत मेहनत है ना? अच्छा, और ठीक है सर। ये तो हो गया पीपीटी। अभी देखो आईटीसी में नए चेंजेस आए, और इनडायरेक्ट टैक्स में यू हैव टू बी वेरी प्रॉम्प्ट, लाइक मेडिकल प्रैक्टिशनर। कोरोना आया तो उसका नया चीज सीखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज न्यू डिजीज। Similarly, in indirect tax, immediately you have to learn the new things. Okay, this amendment has been done in 2019 July. Immediately, ये बोलेगा नहीं, because in your syllabus it has been already mentioned. Whatever things is changing, you have to incorporate in your syllabus. That is a part and So parcel of it. till which date we for our semester, like till which date the amendments are applicable? Is it till April, whatever? Boss, GST में everything. If you are coming across, please. I mean, yes, every day amendment is coming, so. No, बच्चा, you need not have to worry. There is no much amendment. जो भी amendment है उसका भी मैं attachment भेज रहा हूँ तुम लोग को। Thank you, sir. Okay, I have just finished this portion. ये देखो, July 2019 का amendment है। So here in indirect tax we need to be very prompt. Okay, sir. Okay, there is amendment here. There was amendment in इसमें registration limit, वो भी मैं आपको भेज रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन में 29 जून 2020 का अमेंडमेंट है, अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, वो सब भी भेज रहा हूँ। आप समझ रहे हो कितना प्रॉम्प्ट रहना पड़ता है? Yes, sir. इसलिए टैक्स कोई नहीं पढ़ाना चाहता है। Understood? This is not happening with costing. This is not happening with finance. This is not happening with any other auditing and other subjects. Okay, but from day first I have taken this challenge, and I love to make myself updated. Okay, apart from this, I don't have much of time. I've already had another session Okay, sir. on FY. So Yes, sir. एक सेकंड, मेरा खत्म, यहाँ तक समझा कैसे टीचिंग हाँ। करनी है आप लोगों को, और मैं हेल्प कर देता हूँ आपको। ठीक है। Then what you can do, you can go to this website. I mean Google Chrome, I think सबको पता है। हो जाएगा। Google Chrome पता है क्या आप लोगों को? देखता हूँ। तो एक्चुअली रश्मि नहीं है ना, उसको पता ही नहीं चल रहा कि निशिकांत सर इतने फनी भी है। तो जब भी आएंगे 1-2 बार हमारे साथ, तो फर्स्ट मीटिंग में ऐसा लगा नहीं था कि मतलब इतना पॉजिटिव इंटरेक्शन, मतलब जैसे था ना मैडम। हाँ सर तो डर लग रहा था आपसे। डेमो लेक्चर आपने टाइम पे लेंगे, डर गई होगी वो। नहीं सच में डर लग रहा था। अभी तो मुझे यही सोच रही थी कैसे अटेंड करूं, तभी वीडियो भी बंद करके रखा था।
कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो गूगल में ना मेरा नाम है निशिकांत झा, ठीक है, ऐसा ही कुछ मेरा नाम है। तो जैसे गूगल में मेरा नाम डालोगे ना, पहला अगर वो वेबसाइट को हिट करेगा ना, सारी चीज मेरे ही दिखाएगा। दिस मेरे अमेजोन पे सारे बुक्स हैं वो बताएगा, फ्लिपकार्ट बताएगा, मतलब मेरे बारे में गुणगान करेगा। वर्ल्ड में निशिकांत झा इससे अच्छा कहीं नहीं है दूसरा कोई। रीजन बिहाइंड, अरे ऐसे हंस क्यों रहे हो? मैं बता रहा हूँ लॉजिक नहीं है सर। बच्चा लोग। कि देखो ये 4 महीने में मेरे वेबसाइट पे 76,000 का हिट है। 76,000 समझते हो आप लोग? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यस के सर, वेबसाइट यस पे सर। इतना हिट नहीं है, ठीक है। द रीजन इज इसमें वर्ल्ड क्लास सारे बुक्स अवेलेबल हैं, वर्ल्ड के जितने भी बुक चाहिए ना आपको, ऑक्सफोर्ड सबके मैंने बुक्स डाल रखे हैं। देख रहे हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बहुत मेहनत किया है दोस्त। दिख रहा है क्या? अंग्रेजी में लिखा है सब, है ना सादिक सर? सर, सर आपकी मेहनत तो आप, वो बात सही है इवन सर, आप रिसर्च के करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। दैट इज द रीजन इट इज सो पॉपुलर। नॉट ओनली दैट, all the books, more than 100 books has been uploaded, and it will include your book also. You have to search, and student also need not have to go to library any place. जब चाहिए यहाँ हिट करने का। I feel ईला and all they have used direct tax also, तो उनको पता है। Yes, sir. Yes. अगर आप रिसर्च सेक्शन में जाओगे तो इससे भी कड़क कड़क चीज है। इतनी अच्छी अच्छी बुक्स है ना कि आपको मैं बता नहीं सकता। ये सिर्फ आपके लिए, बच्चों को ये मत बताओ, यहीं तक लेके जाओ, ठीक है। एंड देन गो टू द बॉटम ऑफ दिस, एंड इट इज नॉट ओनली डिग्री। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम FIJC ऑनवर्ड्स टिल CA फाइनल, मेनी थिंग्स आई हैव अपलोडेड देयर। कि बच्चे को कभी भी कॉमर्स का नॉलेज चाहिए, बेटा वहां जाओ, मजा करो, सब तुम्हारे लिए अवेलेबल है। किसी कॉलेज में एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी वेंडर से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। Here I have many other social handles of mine. इसी में ना एक है जिसका नाम है YouTube। अभी ये YouTube चैनल को 3 लाख से ज्यादा व्यू है और अप्रोक्स 577 सब्सक्राइबर है। अभी इसी YouTube में अगर आप जाओगे तो यू विल फाइंड all my lectures till today। उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। GST में जहाँ है ना इनिशियल GST सेक्शन 12 ऑफ GST दिख रहा है, सेक्शन 4 and 6 ऑफ GST। ओके, वैसे सेक्शन 1 भी दिख जाएगा आपको, 1 2 3। तो वहां से आप डायरेक्ट, ठीक है। आपको अगर लर्न करना है, बच्चों को लर्न करवाना है, बोलने का जाओ, वीडियो लेसन, है ना। इतना मेरे पास टाइम नहीं है। ये मैं नहीं हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट है इसका। कड़ला का है, अब इससे ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं हो सकता।
आपको आपके बच्चों को तो मुझे रिजल्ट परफेक्ट चाहिए, ठीक है। नाउ अरे गप्पा बस रहे आपका। इसके अलावा जब भी आपको मैं ये एक्सेल का शीट भेजूंगा, इट हैज ऑल द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर। तो व्हाट आई यूज टू डू, मैं ये सारे आंसर्स ये भी सिखा देता हूँ मैं कैसे। अभी पूछूंगा कि ये किस टाइप का सब है, प्रिंसिपल है या कंपोजिट सप्लाई है, तो मैं सारे आंसर को ना पहले वाइट कर देता हूँ, तो उसको आंसर नहीं पता रहता है। और फॉन्ट साइज बड़ा रखता हूँ ताकि उसको रीड करने को तकलीफ ना हो। अब बच्चे को सिर्फ ये पता चल रहा है। So after teaching directly, I'll come here. I'll ask them question, and I'll ask them to एकदम sorted है। Give the answer. कड़ला कहाँ है? अब देखो ये सेक्शन 7-8 है, ये सेक्शन 9-10 है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई दिख रहा है आपको? Yes sir, yes sir, दिख रहा है। Of 10 to 13 of IGST, section 11, section 12, 13, 14, सब क्वेश्चन इधर है। TDS. Yes sir. कड़क धमाल Perfect. भाई, फिर तो अब देखो पार्टी पार्टी भाई। Sure sir. टाइम ऑफ सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने लिखा है ये डेट ऑफ, जो नहीं समझेगा पूछ लेना सर, एक दिन पहले 2 दिन पहले, ठीक है ना। डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, तो व्हाट इज द डेट ऑफ सप्लाई। डेट अभी थोड़ा थोड़ा तुम भी पढ़ो, नहीं तो मैं सारा चीज बता दूंगा तो आप और ज्यादा हैंडीकैप हो जाओगे, ठीक है। Okay sir. Now from my end, training is over. If you have anything, if you want to ask anything, feel free to ask me. Sir, I have also been given SWF tax semester 4, which is new something, sir. So I wanted guidance for Sir, that also. उसका Sir. अलग से लिया जाएगा। अच्छा लेंगे फिर अच्छा आपको वो भी। फर्स्ट क्या बोलते हैं, 1 जनवरी, Myself and Rashmi we are sharing both. जनवरी आपको बिगाड़ना पड़ेगा। Yes, sir. And so one more thing, sir, TY BAF, I've been given from like from payment of tax, interest on delayed payments, returns and all. मतलब वो after अलग this अलग section. क्या है ना बेटा, अभी मैंने ना ऑलरेडी FI के आप देख नहीं, रहे सर। हैं, नहीं दिख रहा है, आई डोंट No, नो। right, sir. पे बहुत सारे बच्चे देखो नहीं, सर। कर रहे हैं, आप रहोगे तो ठीक है आपको ठीक है, नो पता प्रॉब्लम होगा। सर। उनका ऑलरेडी शेड्यूल था। No problem, ठीक है sir. सर, आपको नो प्रॉब्लम सर। मेरे को पढ़ाने से Okay, अच्छा और sir. कोई मजा नहीं आता है। आई एम थोड़ा सा आपसे गाइडेंस ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। रिसर्च, बाकी अभी आगे का नहीं बताऊंगा। No problem, sir. ठीक है सर, ठीक है, Okay. ठीक है। हर एक का अलग अलग रख सकते हैं, में आप सब करोगे इट विल नॉट बी। So one last question. यस Sir, that TY में जो हमें आगे का पढ़ाना, तो मेरे को ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं है, मतलब what I've been allotted. तो sorry, sir, am I audible? नाउ यू आर ऑडिबल। Yes, you are audible. Just give me 1 second. Rashmi audible. अभी सबको डिस्टर्ब करना है। यस, बोल सर बेटा, जो कौन पूछ रहा था? TY BAF, सर मैं हाँ बोलो सर बेटा। TY BAF, हाँ सर TY BAF में जो हमें मतलब मुझे जो पढ़ाना है, that is after this topic.
Yes. I mean, after section 30. 31 to section 66. Yes, yes sir. So सर अगर मुझे वो पढ़ाना है तो मैं बच्चों को पहले ये इंट्रोडक्शन कराऊं या फिर मैं उसके हिसाब से नहीं चलेगा। आज मैं सिर्फ नहीं चलेगा ना? दैट्स TY BCom की ट्रेनिंग के लिए बात करी थी। okay, okay sir. Okay. This training is No problem, sir. for TY BCom. Am I very Introduction of GST. Yes sir. See, when training will go, it will be different to different. Okay. So now, who all are there for them? You wanted, Sadiq, what you wanted? You wanted? अरे unmute तो कर मेरे Mute, भाई। oh, mute. sorry sir, I wanted the SWAB app. क्या नहीं आ रहा है सर? हाँ अभी आ रहे अभी। तो कल कितने सर बजे I wanted आओगे सर? कल 6 o'clock का रख दूं? हाँ सर जैसे आप बोलो 6 AM जैसे आप बोलो 6 AM जल्दी हो जाएगा सर। अब तो भारी हूँ मैं थोड़ा मुझे फैमिली के पता साथ। है आज 31st है सर। वही तो कल फिर कल दो first है। मॉर्निंग में मैं आपको बताता हूँ। I'll around 10-11 ठीक है इवनिंग। Okay, yours is done. सुभाष हेलो सर। हेलो क्या बोल? सर आवाज नहीं आ रही सर। नहीं सुभाष तुम्हारा तो हो गया ना? आवाज नहीं आ रहा था सर। तो बहुत सर सेल्फी। कितने बजे सर? हाँ बोलो सादिक। आवाज नहीं आ रहा था आपका सर इसके। मैं 10 और हाँ सर 11 आप बोलिए कोई भी टाइम। हाँ 10 o'clock 11 मेरे को भी चलेगा सर, आप जैसे मैं आपको भेज कंफर्टेबल। दूंगा ग्रुप। नहीं मैं अकाउंटेंसी के ग्रुप में ही डालूंगा। आप रिक्वेस्ट भेजो उधर, क्योंकि मुझे नहीं हाँ था TY BCom के लिए। अच्छा इनडायरेक्ट अपना बैच का। स्टार्टेड विद दैट। तो आप वहां से रिक्वेस्ट भेजो, मैं वापस बोलूंगा। उसी तरह ओके सर मैं और रश्मि है शेयर कर उसको रहे हैं। बोलूंगा। Yes sir. Yes sir. मैसेज any रश्मि ये doubt? बहुत शेयरिंग सर। Things clear? ओके Yes, sir. So I'll send you one Sir, link. you will share this PPT now for TY BCom. You will share this PPT now for TY BCom. I will share this. PPT सर। PPT She wants PPT जो PPT। ईला बेटा मैं आपको और Excel. वर्ड कि PPT से काम नहीं चलने वाला। एवरीथिंग आई Okay. बुक आई विल नॉट सेंड। मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, हाँ book. बच्चों को भी करना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ. लेट देम गो एंड सर्च एंड गेट इट राइट। Get it. Okay sir. Okay. थैंक यू, गुड नाइट, Thank you. एंजॉय योर Okay, Thank you sir. Thank you so much. Thank सर you Happy sir. New Year, sir. Wish you हैप्पी न्यू ईयर wish you a सर। very happy new year. 31 दिसंबर। टेक केयर सर, गॉड ब्लेस यू। यू टू। तो सर कल मिलते हैं सर, मैं आपको आप लोग वो निकल भेजता जाओ। हूँ सर। देखिए आप लोग के सामने ही मैं बच्चों को एंट्री दे रहा हूँ, तो आपको पता लगेगा कि ठीक सर है। बिजी थे। नहीं सर। नहीं sir. ये देखो, We'll leave. ये देखो, ये देखो, ये ठीक है। देखो, सब FI अभी घुसना चालू करेगा। ये देखो, अरे हाँ सर, देखा? आ गए सर। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, बाय। Okay. Sorry dear student, I had trained the trainer